Good morning students. In the standard 11th we have studied about the section formula and particularly we have studied in the two dimensions. आपको मालूम है सेक्शन फार्मूला क्या है कि अगर यहाँ पे सेगमेंट ए बी दिया है, सेगमेंट ए बी इज गिवन and if the point R lies on the segment AB between the point A and B, in that case what we can say, point R divides segment AB internally in the ratio AR is to RB. यानी आप क्या बोल सकते हैं, पॉइंट आर क्या कर रहा है, ए बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो व्हाट इज ए आर इज टू आर बी. सपोज हियर कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए इज गिवन एज x1 y1, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी x2 y2 है, एंड सपोज हियर पॉइंट आर डिवाइड सेगमेंट ए बी इंटरनली इन द रेशियो m इज टू n. तो देन वी नो सेक्शन फॉर्मूला, देन वी नो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट आर दैट इज गिवन एज mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, and what is my2 plus ny1 divided by what is m plus n. So this formula you have studied in the 10th standard. Exactly in the same manner we have studied also section formula for the external division. If it is the external division, what will happen? Suppose here segment AB is given, then point R lies outside the segment AB but along the same line. Point R कहाँ पे रहेगा? Outside the segment AB रहेगा but along the same line. Whether it lies on the right hand side of segment AB or left hand side of segment AB, that does not make any difference. So in this case we can say point R divides segment AB क्या है, externally in the ratio AR is to RB. ठीक है, suppose ये M है और ये N है, and once again suppose coordinate of the point A is given as x1 y1, coordinate of point B is given as x2 y2. Then we know coordinate of point R क्या रहेगा, बस यहाँ पे साइन चेंज करना है. ठीक है, तो ये फॉर्मूलेज है क्या किया अपन ने 10th पे पढ़े रहे हैं. तो अब देखो ये फार्मूले को अपन मॉडिफाई करेंगे और इसको अब 3 डायमेंशन के लिए प्रूव करेंगे, एंड पर्टिकुलरली यहाँ पे क्या करेंगे अपन, वेक्टर मेथड से प्रूव करेंगे. यानी वेक्टर मेथड से यहाँ पे क्या करेंगे, विल फाइंड द पोजीशन वेक्टर. तो सी हियर वन थ्योरम इज रिटन. तो दिस इज एक्चुअली सेक्शन फार्मूला फॉर द इंटरनल डिवीजन. तो सी हियर व्हाट इज गिवन, लेट अस टेक ए वेक्टर ए, बी वेक्टर बी, एनी 2 पॉइंट्स इन द स्पेस, and R vector RB is a point on the line segment AB dividing it internally in the ratio m is to n. यानी यहाँ पे क्या दिया है कि ये segment AB is given, this is segment AB and point R क्या है, this lies on the segment AB and it divides the segment AB internally in the ratio m is to n. Suppose here this point is R. So this point divides the segment AB internally in the ratio what is given, m is to n. This ratio is given as m is to n. And in the bracket what is given here, vector A, vector B. Actually this is what, position vector of the point A and B. So for this what you have to do, we have to take, let us take here O is any fixed point. Particularly suppose this is origin. Okay. So here if you join this, what is here, OA. Join OA, join OB and join OR. So since here O is fixed point, vector OA यानी क्या रहेगा, position vector of the point A, that means vector A. Vector OB means what, this is position vector of the point B means vector B, and OR is nothing but position vector of the point R. Okay, so this one we have. So what you have to do here, we have to prove that the position vector of the point R is given as what is m vector b plus n vector a divided by m plus n. ये प्रूव करना है. हाँ, तो क्या किया मैंने यहाँ पे पहले कंस्ट्रक्शन, लेट अस सपोज दैट हियर O is any fixed point, O is any fixed point. We can say join OA, OB and OR, and therefore vector OA is equal to, we can say, position vector of point A, that means vector A. Okay, vector OB, this is equal to what is, position vector of point B, that means vector B, and vector OR is equal to position vector of point R, we denote it by vector R. Okay, ठीक है. अब इसके बाद में देखो यहाँ पे क्या दिया है, पॉइंट R डिवाइड सेगमेंट AB इंटरनली इन द रेशियो m is to n. तो हियर वी कैन राइट सिंस पॉइंट R डिवाइड्स क्या दिया है,
segment AB internally in the ratio m is to n, and therefore we can say here AR is to RB. देखो यानी ये रेशियो जो है AR is to RB is equal to what is m is to n दिया है. तो दिस कैन बी रिटन लाइक दिस. देखो अब ये इंपॉर्टेंट है, therefore इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं वेक्टर AR डिवाइडेड बाय RB, वेक्टर RB इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय n. या इसको पहले अपन ऐसा लिख लेते हैं m बाय n रेशियो में AR बाय RB. अब देखो सिगमेंट अगर ये रेशियो में दिया है AR और RB अगर m is to n रेशियो में है, तो इसका मतलब वेक्टर ऑल्सो विल बी इन द सेम रेशियो. दैट मीन्स वी कैन राइट हियर वेक्टर AR डिवाइडेड बाय वेक्टर RB इज इक्वल टू व्हाट इज m डिवाइडेड बाय n. ठीक है, क्या दिया है, पॉइंट R डिवाइड सेगमेंट AB इंटरनली इन द रेशियो m is to n. इसका मतलब AR is to RB इज इक्वल टू व्हाट इज m is to n. तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, AR by RB इक्वल टू m by n. इफ द सेगमेंट्स आर इन द रेशियो m is to n, the vector will be also in the same ratio. Now just cross multiply it. So therefore we will get here n vector AR. अब देखो इसको वेक्टर AR बोलो या AR बार बोलो, कुछ प्रॉब्लम नहीं. एंड हियर व्हाट इज विल गेट m वेक्टर व्हाट इज दैट RB. अब देखो आवर आंसर इज गिवन कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर. तो वी नो हाउ टू एक्सप्रेस दिस वेक्टर इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर. तो देयरफॉर विल गेट हियर n. अब वेक्टर AR का मतलब क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A. दिस इज इक्वल टू m. दिस इज नथिंग बट व्हाट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R. अब कॉलम में एवरी वेक्टर कैन बी रिटर्न इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर. तो क्या आ जाएंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा n. तो देखो ये पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट. तो पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट R यानी क्या लिखा है, ये यहाँ पे वेक्टर R है. तो दिस इज वेक्टर R माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट A यानी क्या रहेगा यहाँ पे वेक्टर A इज इक्वल टू हियर m इन द ब्रैकेट पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट B यानी वेक्टर B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R यानी वेक्टर R. आप चाहे तो ये डायरेक्टली लिख सकते, प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, बस आप सिंप्लीफाई करो. आपको क्या करना है, देखो वेक्टर R की वैल्यू फाइंड करना है. तो देयरफॉर अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो n वेक्टर R माइनस n वेक्टर A इज इक्वल टू m वेक्टर B माइनस m वेक्टर R. तो वी हैव टू फाइंड वेक्टर R. तो दैट्स व्हाई व्हाट विल डू, विल ट्रांसफर R टर्म टू द लेफ्ट साइड एंड रिमेनिंग टर्म्स टू द राइट साइड. So therefore we will get here n vector R minus m vector R is equal to m vector B plus, ये भी प्लस हो जाएगा, n vector A. Now see here what is vector R is common. तो अरेंज करो. तो n by m लिखो या डायरेक्टली m by n लिख सकते, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. m plus n लिखो या n plus m लिखो. वेक्टर R कॉमन, तो विल गेट m vector B plus n vector A. And therefore we will get vector R is equal to what is m vector B plus n vector A divided by m plus m. तो देखो ये हो गया सेक्शन फॉर्मूला फॉर द इंटरनल डिवीजन. एंड इफ द पॉइंट R डिवाइड सेगमेंट AB इंटरनली इन द रेशियो m is to n है, देन द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट R. वेक्टर R यानी क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट R इज गिवन एज m वेक्टर B. देखो यानी ये क्रॉस में m वेक्टर B plus n vector A divided by what is m plus n. So this formula is important. So many times it came in the exam. Important है वैसे. Okay. अब देखो यहाँ पे now suppose here coordinate of the point. Suppose here it is given. Let us suppose that coordinate of point A is given as x1, y1, z1. Coordinate of the point B given as x2, y2, z2. Then अगर आपको R के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, अगर यहाँ पे पॉइंट R AB को डिवाइड करा, देखो इससे अगर आपको R के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो इसको इजीली आप प्रूव कर सकते हैं. क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे A दिया है, A का मतलब यहाँ पे वेक्टर A आ जाएगा x1 I प्लस y1 j प्लस z1 के. ठीक है, वेक्टर B यू विल गेट
what will get x2i plus y2j plus z2k. Put this value in this expression. अगर आप यहाँ पे पुट करेंगे और r के कोऑर्डिनेट क्या लेते हैं, xyz. r के कोऑर्डिनेट अगर आपने xyz लिया तो वेक्टर r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, xi प्लस yj प्लस zk. तो पुट दिस वेक्टर a, वेक्टर b एंड वेक्टर r इन दिस एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई राइट हैंड साइड कंप्लीटली. अगर आप राइट हैंड साइड कंप्लीटली सिंप्लीफाई करेंगे तो लेफ्ट साइड में इस तरह से आ जाएगा xi प्लस yj प्लस zk यू विल गेट. अब ये यूनिट वेक्टर है इसलिए क्या लिखना है ij के, ठीक है. अब देखो यहाँ पे अगर आप पुट करेंगे m वेक्टर b आ जाएगा n वेक्टर b, तो यहाँ पे अगर आप आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इट मे कम लाइक दिस mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा m प्लस n वेक्टर i कैप प्लस यहाँ पे आ जाएंगी j कैप प्लस k कैप. यानी अगर आप ये वैल्यूज़ को अगर यहाँ पे पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा. और इसके बाद में अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, क्या मिलेगा, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n. देखो ये सेम फार्मूला है एज प्रीवियस 10th में आप लोग जो पढ़े हुई है. y कोऑर्डिनेट उसी टाइप से आ जाएगा, my2 इस टाइप से आ जाएगा, my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय m प्लस n आ जाएगा y कोऑर्डिनेट. एंड एग्जैक्टली इन द सेम मैनर z कोऑर्डिनेट विल कम, व्हाट mz2 प्लस क्या आ जाएगा, nz1 डिवाइड बाय m प्लस n. यानी इसको इजीली प्रूव कर सकते हैं, तो इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है. आप इस तरह से पुट करके अगर आप ij k की टर्म्स अगर कलेक्ट करेंगे राइट साइड में और कंपेयर करेंगे तो आपको x y z की वैल्यू मिल जाएंगी. तो हियर विल राइट कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट r डायरेक्टली. तो देखो यहाँ पे a के कोऑर्डिनेट है, b के कोऑर्डिनेट है, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट r which divides segment AB internally in the ratio m is to n is given by. तो ये डायरेक्टली याद रखो आप, is given by क्या रहेगा, r is given by mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, and z coordinate is again given in the same manner. This is what z coordinate. तो इजीली प्रूव कर सकते हैं. आप किताब में अलग नोटेशन दिए तो विल यूज सेम नोटेशन जो आपको मालूम है, इट इज इजी टू रिमेंबर, ठीक है. ये नोटेशन यूज करेंगे अपन. अब देखो जैसे ये सेक्शन फार्मूला इंटरनल डिवीजन के लिए प्रूव किया, सेम टाइप का फार्मूला एक्सटर्नल डिवीजन के लिए भी है. तो यहाँ पे 6th थ्योरम है एक्सटर्नल डिवीजन. देखो यहाँ पे मैं जस्ट थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, एक्सटर्नल डिवीजन. लेट a वेक्टर a एंड b वेक्टर b be any two points in the space and point r is a point on the line segment AB, dividing it यहाँ पे लेते एक्सटर्नली, एक्सटर्नली इन द रेशियो, देन वेक्टर r इज इक्वल टू दिस वन. देखो ये अब प्रूव करेंगे अपन. देखो अब चेंजेस कहाँ पे होते, देखो अब बिल्कुल सेम प्रोसीजर है. तो देखो अब यहाँ पे नेक्स्ट थ्योरम है, 6th थ्योरम है एक्सटर्नल डिवीजन के लिए. सेक्शन फार्मूला फॉर व्हाट इज एक्सटर्नल डिवीजन. हाँ, तो अब इसको प्रूव करना है. तो देखो यहाँ पे अगेन क्या करेंगे, ये सेगमेंट ए बी है. अब यहाँ पे क्या जाएगी, पॉइंट आर डिवाइड सेगमेंट ए बी एक्सटर्नली है, तो इसका मतलब पॉइंट आर कहाँ पे रहेगा, आउटसाइड रहेगा यहाँ पे. तो ये है पॉइंट आर इन द रेशियो दिया है. तो ये रेशियो देखो m और ये n, m is to n, ठीक है. और यहाँ पे अगेन क्या करेंगे, लेट अस टेक हियर o इज फिक्स पॉइंट, डेफिनेटली ओरिजिन ज्वाइन OA. तो दिस इज व्हाट पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A ज्वाइन OB. तो दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B एंड ज्वाइन OR. ओके, तो दिस इज व्हाट पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R एंड ए वेक्टर R, ठीक है. देखो ये सेम. अब यहाँ पे यूज करते हैं. अब ये क्या दिया है, सिंस पॉइंट R डिवाइड्स सेगमेंट AB externally in the ratio
m/n, देखो सिंस पॉइंट आर डिवाइड सेगमेंट ए बी एक्सटर्नली इन द रेशियो m/n, देयरफॉर क्या आ जाएगा यहाँ पे AR/RB इज इक्वल टू माइनस m/n। देखो एक्सटर्नली है इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस साइन, एक्सटर्नली है करके माइनस साइन आएगा यहाँ पे, एंड इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे AR डिवाइड, और वैसे भी देखो AR और BR की डायरेक्शन अपोजिट है, तो देयरफॉर AR डिवाइडेड बाय RB इज इक्वल टू यू विल गेट माइनस M डिवाइडेड बाय N। देखो जस्ट साइन चेंज हो रहा, बाकी सेम प्रोसीजर है बिल्कुल। अगर सिगमेंट ये रेशियो में है तो वेक्टर विल बी ऑल्सो इन द सेम रेशियो, वेक्टर AR बाय वेक्टर RB इज इक्वल टू माइनस M डिवाइडेड बाय N। देखो एक्सटर्नल डिवीजन है करके माइनस साइन है, बाकी प्रोसीजर सेम है। अब जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाइड, तो अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा N वेक्टर AR इज इक्वल टू माइनस M वेक्टर BR, हाँ सॉरी M वेक्टर क्या है RB है, हाँ। तो नाउ एक्सप्रेस दिस इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, तो देयरफॉर यू विल गेट हियर N वेक्टर AR डायरेक्टली लिखते हैं वेक्टर R माइनस वेक्टर A माइनस M इन द ब्रैकेट। देखो पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, यहाँ पे टर्मिनल पॉइंट B है तो ये आ जाएगा वेक्टर B माइनस वेक्टर R, ठीक है। डायरेक्टली लिखा है, लिख सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सिंप्लीफाई कर लो इसको। तो देयरफॉर वी विल गेट हियर N वेक्टर R माइनस N वेक्टर A इज इक्वल टू माइनस M वेक्टर B माइनस माइनस प्लस M वेक्टर R। तो देखो यहाँ पे जो टर्म है N वेक्टर A निगेटिव है, तो उसके हिसाब से अपन अरेंज करते हैं। N वेक्टर A को यहाँ पे रहने देते हैं, विल ट्रांसफर दिस टर्म, वी हैव टू फाइंड वेक्टर R, तो वेक्टर R की टर्म राइट साइड में ट्रांसफर कर लेते हैं आप, ठीक है। क्या आ जाएगा, ये प्लस हो जाएंगे, तो देयरफॉर ये आ जाएगा M वेक्टर B माइनस N वेक्टर A इज इक्वल टू M वेक्टर R माइनस N वेक्टर R। वी हैव टू फाइंड वेक्टर R, so that's why we are collected the terms of vector R on one side and remaining terms to the other side, and therefore we will get from this what is M vector B minus N vector A is equal to M minus N vector R common, and therefore vector R क्या देंगे यहाँ पे M vector B minus N vector A divided by M minus N is equal to vector A, and that means we can say vector R is equal to M vector B minus N vector A divided by M minus N. So this is what position vector of the point R which divides segment AB externally in the ratio M/N। देखो बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, एग्जाम में एक्सटर्नली भी आ सकता, वैसे ज़्यादातर तो इंटरनल डिवीजन का है, ठीक है। तो ये 3 मार्क के लिए पूछते हैं। अब उसी टाइप से देखो, अब यहाँ पे एक नोट, तो देखो यहाँ पे लेट A के कोऑर्डिनेट दिए, B के कोऑर्डिनेट सपोज x2 y2 z2 है, एंड देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट R विच डिवाइड सेगमेंट AB सपोज यहाँ पे एक्सटर्नली दिया है इन द रेशियो M/N, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट R विल बी गिवन बाय क्या रहेगा यहाँ पे, जैसे आपको मालूम है 2 डायमेंशन में रहता है, उसी टाइप से यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे सिर्फ नया कौन सा कोऑर्डिनेट है, Z कोऑर्डिनेट है, तो ये हो गया कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट R, ठीक है। देखो दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है वैसे, ओके। अब देखो थोड़ा इसके, अब मिड पॉइंट फॉर्मूला है, इसको भी आप बिल्कुल इजीली प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिजल्ट चलो 1, अब सपोज यहाँ पे सेगमेंट AB दिया है और M अगर इसका मिड पॉइंट है, शॉर्ट में लिखते हैं आप, ठीक है। M क्या है, मिड पॉइंट ऑफ AB है। अब देखो ये मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, पॉइंट M डिवाइड सेगमेंट AB इंटरनली इन द रेशियो 1:1, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम रहेगा, तो इसलिए रेशियो क्या रहेगा 1:1 रहेगा। यहाँ पे भी आप चाहे तो पॉइंट O ले सकते हैं, इसको अगर आप ज्वाइन करेंगे तो पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट A मीन्स वेक्टर A, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट B मीन्स वेक्टर B, और ये हो जाएगा M, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट M है वेक्टर M। तो यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस सपोज दैट M इज A मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB, ठीक है। तो देयरफॉर क्या बोलेंगे यहाँ पे, देयरफॉर M डिवाइड्स सेगमेंट AB
क्या रहेगा, इंटरनली इन द रेशियो, इंटरनली इन द रेशियो क्या रहेगा यहाँ पे 1:1। देखो कौन सा पॉइंट डिवाइड कर रहा है, एम डिवाइड कर रहा है, किसको डिवाइड कर रहा है, ए बी को डिवाइड कर रहा है, कौन से रेशियो में कर रहा है, 1:1। तो देयरफॉर बाय सेक्शन फार्मूला, देयरफॉर बाय सेक्शन फार्मूला कौन सा, डेफिनेटली इंटरनल है, तो इंटरनल डिवीजन का तो क्या हो जाएगा, पॉइंट एम, देखो मैंने बताया था कि वेक्टर एम इज इक्वल, देखो क्या होता है, क्रॉस लेना है, एम इंटू वेक्टर बी, यानी क्या आ जाएगा 1 इंटू वेक्टर बी, बाद में ये 1 इंटू वेक्टर है, 1 इंटू वेक्टर है डिवाइडेड बाय व्हाट इज एम प्लस एन, यानी 1 + 1। देखो सेक्शन फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, क्रॉस में लेना है एम इंटू वेक्टर बी, एन इंटू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय एम प्लस एन, यानी इसका मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा, वेक्टर एम इज इक्वल टू व्हाट इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बाय 2। तो देखो ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट, ये क्या हो गया, यानी क्या करना है, अगर आपको मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ए बी फाइंड करना है तो जस्ट क्या करना है, एंड पॉइंट के जो पोजीशन वेक्टर है उसको ऐड करो एंड डिवाइडेड बाय 2, तो आपको मिड पॉइंट फार्मूला मिलेगा। तो इसको बोलते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। यहाँ पे ही चलो, यहाँ पे रिजल्ट 1 यहाँ पे ही लिख लेते हैं 1 मिड पॉइंट फार्मूला करके। अब ये समटाइम्स दिस कैन बी कनेक्टेड विद द सेक्शन फार्मूला फॉर द इंटरनल डिवीजन, एंड एग्जैक्टली इन द सेम मैनर सेंट्रॉइड फार्मूला, तो in the beginning itself I told you what is centroid. In the straight line chapter I told you centroid यानी क्या है, that is a point of intersection of the medians of the triangle। तो centroid फॉर्मूले में क्या है, सपोज यहाँ पे ट्रायंगल ABC दिया है, एक मिनट बिफोर ऐसा करते हैं ना, सेंट्रॉइड फॉर्मूले के पहले कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट क्या रहेंगे। अब यहाँ पे चलो यहाँ पे एक नोट करके लिख लेते ना, यस लेट अस सपोज दैट ए के कोऑर्डिनेट 3 डायमेंशन में, इसलिए x1 y1 z1, एंड बी के कोऑर्डिनेट से सपोज x2 y2 z2, ठीक है, ए और बी के कोऑर्डिनेट है। इफ m इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB, देन m के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला एक्चुअली आपको इसको भी प्रूव कर सकते हैं, यहाँ से वेक्टर A मिलेगा, यहाँ पे पुट कर दो, ये वेक्टर भी पुट कर सकते हैं आप, और कंपेयर करके आप फाइंड कर सकते हो। ये आएगा व्हाट इज x1 + x2/2, y1 + y2/2 एंड z1 + z2/2। तो ये हो गया मिड पॉइंट फार्मूला, यानी कोऑर्डिनेट्स है तो इससे कर सकते हैं, मगर जनरली अपन वेक्टर मेथड्स ही करेंगे बिकॉज वी आर स्टडिंग वेक्टर चैप्टर, तो दैट्स व्हाई पर्टिकुलरली ऑल एग्जांपल्स विल डू इट बाय व्हाट इज वेक्टर मेथड। ओके, उसी टाइप से है सेंट्रॉइड फार्मूला। अब सेंट्रॉइड यानी क्या बताया था मैंने, दैट इज ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल। तो देखो अब सपोज यहाँ पे ट्रायंगल ABC दिया है, suppose this is triangle ABC, okay, suppose position vector of the point A vector A, position vector of point B is vector B, and position vector of point C is vector C। okay, अब यहाँ पे point O शो नहीं कर रहा हूँ मैं। अब देखो सपोज यहाँ पे ये मिड पॉइंट है, D is a mid point of BC, E is a mid point of what is AC, and F is a mid point of what is AB। तो join this AD। अब देखो AD को अगर मैंने ज्वाइन किया तो AD क्या है, मीडियन है, अगर इसको ज्वाइन किया तो CF इज ऑल्सो मीडियन, और ये ज्वाइन किया तो ये भी मीडियन है। तो देखो ऑल द मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओनली 1 पॉइंट। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियन है इसको बोलते हैं सेंट्राइड। तो ये हो गया G। और आपको मालूम है प्रॉपर्टी, सेंट्राइड ऑलवेज डिवाइड द मीडियन इंटरनली इन द रेशियो 2:1। सेंट्राइड ऑलवेज डिवाइड मीडियन इंटरनली इन द रेशियो 2:1। तो नाउ व्हाट वी वांट टू फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट G, वी वांट टू फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट G। ठीक है, तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर हो गया। अब इसको अपन यहाँ पे करेंगे कि लेट अस सपोज दैट D, E and F आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स क्या है, वेक्टर BC, AC and AB रिस्पेक्टिवली,
एंड देयरफॉर बाय, चलो पहले मिड पॉइंट फार्मूला यूज कर लेता हूँ। मिड पॉइंट फार्मूला, देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फार्मूला क्या आ जाएगा यहाँ पे, डी किसका मिड पॉइंट है, बीसी का। तो अभी बताया मैंने क्या करना है, पोजीशन वेक्टर आप एंड पॉइंट ऐड करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेक्टर डी इज इक्वल टू बी प्लस सी बाय 2, बराबर है, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बाय 2। ई इज इक्वल टू, ई किसका मिड पॉइंट है, देखो ए सी का है, तो ये आ जाएगा वेक्टर ए प्लस सी बाय 2 एंड एफ इज इक्वल टू व्हाट विल गेट हियर, ए प्लस बी बाय 2, ए प्लस बी बाय 2। तो चलो इसको ले लेते 1, ठीक है। अब देखो आपको सेंट्राइड की प्रॉपर्टी मालूम है, सेंट्राइड ऑलवेज डिवाइड्स मीडियन इंटरनली इन द रेशियो 2:1, यानी ये सेंट्राइड क्या कर रहा है, एडी को 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे आप सेक्शन फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो लेट अस सपोज दैट हियर, लेट जी इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, एंड देयरफॉर वी कैन से जी डिवाइड्स मीडियन, कोई भी एक मीडियन ले सकते हैं आप। मीडियन क्या करेंगे यहाँ पे अपन ऐसा करेंगे, एडी ले लेते हैं, एडी इंटरनली इन द रेशियो 2:1। देखो यानी क्या रहा है, जी डिवाइड्स एडी इंटरनली इन द रेशियो 2:1। देखो यानी कैसा है, ये एडी है समझ लो, ये जी है, रेशियो 2:1 है, तो आपको क्रॉस में लेना है, इसका पोजीशन वेक्टर डी है, इसका ए है, देखो क्रॉस में लेना है, यानी क्या हो जाएगा, देयरफॉर वेक्टर जी इज इक्वल टू, सेक्शन फॉर्मूले से, यानी जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 वेक्टर डी प्लस 1 वेक्टर ए डिवाइडेड बाय 2 + 1, ठीक है। देखो यानी जी डिवाइड कर रहा है किसको, एडी को, रेशियो 2:1 है, 2 वेक्टर डी 1 वेक्टर ए डिवाइडेड बाय 2 + 1, और देयरफॉर विल गेट 2। नाउ सी वेक्टर डी इज व्हाट, बी प्लस सी बाय 2 है, तो दिस इज व्हाट, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बाय 2 इंटू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय 3, दिस विल गेट कैंसल, दैट मीन्स वेक्टर जी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 3। देखो ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंट्राइड ऑफ द ट्रायंगल। यानी अगर आपको वर्टासेस ऑफ द ट्रायंगल के पोजीशन वेक्टर्स मालूम है तो सेंट्राइड का पोजीशन वेक्टर आप फाइंड कर सकते हैं। वेक्टर जी इज इक्वल टू क्या किया, तीनों वर्टासेस के पोजीशन वेक्टर को ऐड किया है और उसको 3 से डिवाइड किया है। और अब इसके कोऑर्डिनेट्स, सपोज यहाँ पे ऐसा दिया होगा, इफ ए के कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 z1 है, कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज गिवन एज सपोज हियर x2 y2 z2, कोऑर्डिनेट ऑफ सी इज गिवन एज x3 y3 z3, ठीक है। देन कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड जी ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज गिवन बाय, क्या रहेगा, यस सेंट्राइड फार्मूला आपको मालूम है क्या रहेगा, सम ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। देखो इसको भी प्रूव करना है तो ये पोजीशन वेक्टर इसके फाइंड करके यहाँ पे पुट करके लेफ्ट साइड और राइट साइड को आप कंपेयर कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, सम ऑफ, देखो सम ऑफ x कोऑर्डिनेट बाय 3 है, सम ऑफ y कोऑर्डिनेट बाय 3 है, एंड सम ऑफ z कोऑर्डिनेट बाय 3। तीनों पॉइंट के z कोऑर्डिनेट को ऐड करो, उसको 3 से डिवाइड करो, तो ये हो गया सेंट्राइड फॉर्मूला, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर याद रखना है। और लास्टली एक रिजल्ट यानी थर्ड है सेंट्राइड फॉर्मूला फॉर टेट्राहेड्रॉन। अब इसका प्रूफ नहीं दिया है, तो टेट्राहेड्रॉन ने आपको मालूम है सभी फेसेस क्या रहना चाहिए, ट्रायंगुलर रहना चाहिए। देखो ये टेट्राहेड्रॉन है, सपोज ये पॉइंट ओ है, या चलो ठीक है, तो इसको अगर आप ज्वाइन करेंगे, हाँ तो ये टेट्राहेड्रॉन हो गया। ये ट्रायंगल ऐसा भी ले सकते हैं आप, यानी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये टेट्राहेड्रॉन है। अब सपोज यहाँ पे 4 वर्टासेस इसके, ये ए बी सी डी,
ठीक है। सपोज यहाँ पे इसका पोजीशन वेक्टर ए है, इसका पोजीशन वेक्टर बी है, इसका सी है और इसका डी है, तो इसका भी सेंट्रॉइड फॉर्मूला है। हाँ, तो यहाँ पे इफ ए वेक्टर ए, बी वेक्टर बी यानी इसके पोजीशन वेक्टर है, सी वेक्टर सी एंड डी वेक्टर डी आर पोजीशन वेक्टर्स, sorry, are vertices, we can say vertices of tetrahedron. A, B, C, D. Then position vector of centroid. इसका भी सेंट्राइड चाहे तो G ले सकते हैं या कोई भी नोटेशन ले सकते हैं, G. Then the position vector of centroid G of tetrahedron ABCD is given by, क्या रहेगा, वेक्टर G इज इक्वल टू, क्या करना है, जस्ट सभी वर्टाइसेस को ऐड करना है, A प्लस B प्लस C प्लस D डिवाइडेड बाय 4। तो ये है सेंट्राइड फार्मूला फॉर द, ठीक है, टेट्राहेड्रॉन। तो देखो अब ये सब रिजल्ट्स, प्रूफ तो इंपॉर्टेंट है, सेक्शन फार्मूले का प्रूफ इंपॉर्टेंट है, इंटरनल डिवीजन का, एक्सटर्नल डिवीजन का आ सकता है। इंटरनल डिवीजन का आया तो उसके साथ ये सेंट्राइड फार्मूला ऑफ द ट्रायंगल वाला कनेक्ट कर सकते हैं, तो इस टाइप से प्रूव करना है। और लास्टली क्या लिया मैंने, सेंट्राइड फार्मूला व्हाट इज टेट्राहेड्रॉन, ठीक है। तो ये सब रिजल्ट्स आप लोगों को याद करना है, तो अगले टाइम इससे रिलेटेड एग्जाम्पल लेंगे। चलो ठीक है, बाय।